So again, the Fine. viewers, these are I think why it happened, because the mobile people are accepting only mobile thing. So what do you say, Dr. Okay. Pallavi? Shall we do it now or maybe later on? Yes, bhai, we can do it. Just give me a moment to charge my mobile and we can start it. Just give me a moment. Yeah. Okay. So again, viewers, we are just, I think those who are online, I think Khushbu Ben is continuously with us connected, and She thank you might so much. be. Yes, Thank you so much yes, for yes. her patience, and thank Okay. you so much to Sorry, other viewers. people. Sorry, That sorry, it's viewers. no, but Yeah, I think those people who will watch it later, it will be helpful to them yeah. also. Okay, okay. Yes, yes, definitely. I think Yes. we are still having it just 7:30. So Okay, okay. So we can continue, right? yeah. Okay. So just Big drama, big drama. yeah. No, Yes. it's okay. That's fine. That's okay. But finally we have Okay. started, and welcome Okay. Mr. Rahil also on this live. And again, Okay. big cheers to people who have been with us. So yeah. Okay. Okay, Okay. so I was just talking about women mental health, the Yes. psychosocial aspect, and myself, Yes. Dr. Yes. Jyotik Bachej. I am psychiatrist practicing in Ahmedabad since 7-8 years now, and uh, so today it is the first day of Navratri as well, and that's why we are coming up with this interesting topic. I was not having any idea that today will be Okay. a first day of Navratri. 9 days people will worship women across Yes. the globe, and that is why. So this topic and this aspect, that is psychosocial aspect about women mental health, we are just going to discuss our own experiences. It has nothing to do with any particular cases or any specific people or any specific kind of case histories or treatment. It is just an experience sharing meant for mental health awareness purpose only. So please don't relate anything with yourself or anything with other cases. So without any much delays, let me introduce our speaker for today, Dr. Pallavi Sahu, and she is a psychiatrist, assistant professor, working in Department of Psychiatry, Mental Health Institute, SCB Medical College, Cuttack, Odisha, and she is inclined, or her areas of interest is adult psychiatry, and she has been a PG student in my institute, or both our institutes are common, that is Department of Psychiatry, Medical College, Rajkot, and that is our alma mater, and that what brings us together over here on this platform. And please, doctor, you can just continue with your talk, please. Yes. Thank you, Dr. Jyotik. As I tell him, Jyotik Bhai. He is my senior and our guardian, and we have read all his notes for exams. I think my juniors are also reading his notes, and and Yeah, I think some issues again. topic. Yeah. Yeah, yeah, Okay. please. Okay, so Hmm. this area of women mental health has been has been very special to me, has been very close to me because since our days of training and to the date that we are currently in our I'm working at, where I'm working, there are certain issues that I come across in day-to-day life, and it has been really heart-touching at times, and at times it is a very it's a learning experience for many of us and for me also. We know that globally, when you compare the amount of disorders that women face, disability that women face, is much more higher in mental health, mental illness, and certain mental illness with men. And those disorders are like जो है डिप्रेशन और एंजाइटी है वो ज़्यादातर फीमेल पॉपुलेशन में ज़्यादातर दिखाई देती है और बेसिकली और हमारे पास जो है मतलब कि हमारे पास जो पेशेंट्स भी आते हैं
वो हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, हर तरह के स्पेक्ट्रम के पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे कि साइकोटिक स्पेक्ट्रम के पेशेंट हो, एंजाइटी स्पेक्ट्रम के पेशेंट्स हो, मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट हो, बट मोस्ट कॉमनली हम जो देख रहे हैं वो है बेसिकली मूड और एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा जो चीज़ है जो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करता है कि वाई एज एज अ वुमन, बीइंग अ वुमन, it at times makes it difficult and different to treat means women, because there are multiple issues surrounding it. If you go to the statistics, okay, I'll give you some of the WHO figures. जैसे कि WHO has already mentioned that in India, 1 in 5 women suffer from rape and attempted rape. Yeah. Incidence of domestic violence in India is two-third. Two-third of the Yeah. women complain of domestic violence, any form. It can be a Yeah. physical, emotional, or sexual abuse. So these figures are a little bit horrifying. And then you can imagine the level of stress women go through. Yeah. I think Jyotik bhai, you might be also be encountering these things in your OPD. Yeah. Uh, Yeah. yeah. As a psychiatrist, I really wanted to ask you, when a female comes to you, or when a family bring a female patient to you, what are your experiences? I'll share mine, but you can say yours. Yeah. Yeah. See, this is a very important question because what I personally feel that woman may she be in any role, mother, daughter, sister, or wife, or but when there is some or the other mental health issue, the first thing which from a psychosocial perspective comes is handling entire responsibility of mental health on the woman. तो वो लोग जो काफी सारे जो रिलेटिव्स आते हैं जैसे फीमेल पेशेंट है, तो वो सारी जो एक इनडायरेक्ट ब्लेमिंग जो रहती है वो फीमेल पे जाती है कि आप ज्यादा सोचते हो, फीमेल ज्यादा इमोशनल है, इतना सब सोचना नहीं चाहिए, आप अपना घर का काम करो, अपनी पढ़ाई पढ़ाई करो, अपनी अपनी बाकी सब चिंताएं छोड़ो आप। और उनको उनको एक एक दे आर आस्क डायरेक्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन कि आपको टेंशन किस बात का है, आपको सारी सब चीजें तो घर बैठे बैठे मिल जाती है, then why you are so much under stress. So सारी first thing which what I have experienced is shifting the entire load of responsibility of a mental health कि as if कि वो ही जिम्मेदार है, उसके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए फीमेल खुद जिम्मेदार है, एक ये चीज है रहती है। और दूसरी चीज है कि ऐसा एक नोशन है, नाउ obviously females are ahead in majority of the fields, but still there is a male dominance in the society। और एक ऐसा नोशन भी है कि अगर फीमेल बीमार होती है, फिजिकली बीमार होती है, तो भी उसको काम तो करना ही। तो सेम इज the thing with psychiatric illnesses, even if she is having a serious psychiatric illness, उसको घर का काम तो करना ही पड़ेगा, उसको रसोई करनी पड़ेगी, घर की संभाल रखनी पड़ेगी, बच्चे हैं तो उसका भी केयर रखना। सो दे आर नॉट spared or they are not relieved from their daily course, may it be any strata or any kind of occupation they are having। or again seeking mental health is somewhat delayed in cases of females। दिस इज वन पर्सपेक्टिव। वाई? क्योंकि पहले अलग अलग बातों में जाते हैं कि सोशल इश्यूज का डिस्कशन हुए, अगर कोई लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी कुछ स्टबर्ननेस है, कुछ नीड्स है, उसको फुलफिल कर दो तो मेंटल इलनेसेस ठीक हो जाएंगी, या कहीं बाहर घूमने ले जाओ, कहीं आउट ऑफ स्टेशन ले जाओ तो मेंटल इलनेसेस ठीक हो जाएगी, या फिर दे डायरेक्टली आस्क कि तुमको क्या कमी है लाइफ में, तो वो कमी हम पूरा कर दें, फ्यूचर की कमियां रिजॉल्व कर दें। और इसी को ऐसे सारे क्वेश्चंस को लेके ही देन they come to a psychiatrist or a psychologist very later down the course of the illness, and there it occurs very challenging for a psychiatrist। और जहां तक मेरी बात करूं तो अगर हम पेशेंट के बियॉन्ड अगर देखने जाएं तो ये सारी बातें दिमाग में आती रहती हैं कि even if we try to
treat the patient on a medical grounds or maybe on a psychotherapeutic ground, बट उसका साइको सोशल एनवायरनमेंट कैसे कैसे ठीक करे, कैसे कैसे साउंड करे, वो बहुत चैलेंज रहता है. आप अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज शेयर करिए. बेसिकली जब मैं जहाँ काम करती हूँ, इट्स अ गवर्नमेंट सेक्टर, तो हमारे पास आई एम मींस वी डील विद लॉट ऑफ फीमेल पेशेंट्स. Okay. सबसे पहला इशू जब होता है, तो द फर्स्ट इशू दैट अराइजेस व्हेन द फीमेल comes to us is that कि मतलब कि उसका अगर शी इज नॉट मैरिड, दैट इज अ बिग चैलेंज. I think again there is a technical glitch in that, maybe. Okay. Yeah, so मैं वही बात कर रहा था. Hello everyone, thanks for joining on this live again. And हाँ, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि जहाँ तक फीमेल साइकेट्री का क्वेश्चन एक आता रहता है, तो उसमें दिक्कतें यही आती है कि फीमेल को पूरी तरीके से मानसिक तौर से समझना. या प्लीज. या तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, चैलेंजेस इफ द वुमन इज नॉट मैरिड. अगर वो बच्ची है, लड़की है, और वट एवर शी इज नॉट येट मैरिड, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछते हैं कि क्या इसका मैरिज कर पाएंगे कि नहीं. मैरिज के बाद उसका मतलब कि इलनेस ठीक हो जाएगा क्या. व्हेन वी एक्सप्लेन दैट कि मैरिज एक चैलेंजिंग है, ऐसे औरतों के लिए थोड़ा चैलेंज रहता है. यू नीड टू एक्सप्लेन पार्टनर, उनके फैमिली में कुछ एक्सप्लेन करना रहता है कि टेक मेडिकेशन एंड ऑल, तो वो इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. दे ऑलवेज टेल अस कि ये सब चीजें वो हाइड करते हैं. तो सब्सिक्वेंटली क्या होता है, मैरिज के बाद फर्स्ट एक ब्रेकडाउन होता है, एंड दैट उसकी वजह से क्या होता है कि इन लॉज लोगों को पता चल जाता है कि ये तो हमारे साथ धोखाबाजी हो गया है, हमें इन्होंने बताया नहीं कि इनको कुछ इलनेस है. एंड देन दे धीरे धीरे वो इन लॉज फैमिली जो होती है उसे पूरा डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं. एंड दैट अगेन एड्स अ बर्डन. एक तो पहले मैरिज नहीं हो पा रही, दूसरा मैरिज हो जाए तो डिवोर्स का टैग, सेपरेशन का टैग. And the worst thing that can happen is कि अगर बच्चा हो गया है and the spouse has left, that is a big challenge. हम लोग ऐसे बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स को देख रहे हैं कि जिनका मैरिज हुआ है, मैरिज के बाद उनका एक ब्रेकडाउन हुआ है कि सपोज उनका साइकेट्रिक इलनेस ट्रिगर हुआ है and the husband has left him. तो होता क्या है, the old parents of the female come and they are the only ones who will be taking care of the female. उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, सोशल इश्यूज रहते हैं, एंड दैट अगेन एड्स अप ऑल द स्ट्रेसेस इन हर लाइफ. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स. जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स है, जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, वो भी दूर नहीं है. बिकॉज कि क्या होता है कि वंस मेल एंड अ फीमेल मींस इवन टिल डेट हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि अगर भी हमें एंजाइटी या फिर डिप्रेशन होता है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हाई दीज थिंग्स ट्रिगर अप. नंबर वन ये रहता है कि मैरिज के बाद डबल रोल बढ़ जाता है, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. और अगेन दैट इज अनदर प्रॉब्लमेटिक. इफ शी इज वर्किंग, then they have to take up three things, okay, the work, the family and herself. Herself के लिए जो time रहता है, we always compromise them. But for many women they play very wonderfully, उन लोगों से बहुत अच्छा, they try to manage and balance everything in their life. But for some women who are vulnerable, जिन लोगों का है थोड़ा सा tendency है towards depression होना, towards anxiety होना, उन लोगों में ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर अप कर जाती है, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना. एंड देन सेकेंडरी टू दिस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जब वो जाते भी हैं मतलब कि कंसल्टेशन और ये सब के लिए, जब हमको उनको बोलते भी हैं कि यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग. सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग. हाँ, और सबसे बहुत खतरनाक चीज जो होता है, दैट इज द स्टिग्मा एंड द अब्यूज.
You can't imagine the kind of abuse these women have gone through. जब हमारे पास आते हैं, किसी का हाथ टूटा होता है, कोई मतलब किसी को फ्रैक्चर्स हुए रहते हैं, जब पूछते हैं तो क्या हुआ है कि नहीं, ये था बिकॉज साइकेट्रिक इलनेस फ्लेयर अप हुआ था, उसको पीटे थे, मारे थे, या फिर झाड़ फूक करने के लिए गए थे, तो ऑल दीज थिंग्स, तो ये चीज बहुत जो होता है ना, दे बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो ये अगर हम किसी तरह से टैकल कर पाए तो दैट वुड बी द बिगेस्ट चैलेंज। देखो इसमें आपकी बात पर से देयर इज अ वन क्वेश्चन व्हिच इज इन माइंड की जो आप बोल रहे हैं एंजाइटी है, डिप्रेशन है और ऑल दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स आर देयर, पर कोई भी अगर फैमिली है, दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, से देयर आर फैमिलीज हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग द वुमेन आउट ऑफ देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो हाउ दे कैन डिस्टिंग्विश, वो कैसे उनको पता चल पाएगा कि ये डिसऑर्डर है और ये पर्सनालिटी है, स्वभाव का इश्यू है या ये सिचुएशनल इश्यूज है? हाउ अ पर्सन ऑन maybe on a broader perspective आप थोड़ा बात कर पाए, हाउ अ पर्सन कैन डिस्टिंग्विश so that they can genuinely help the women out there? जब हम देख रहे हैं कि वुमेन एज अ होल जब डिप्रेशन में, ज्यादातर दे डोंट कंप्लेन कि मेरा मन डिप्रेस्ड हो रहा है, मेरा उदास हो रहा है, दे नॉर्मली प्रेजेंट विद सोमैटिक कंप्लेंट्स। फर्स्ट होता है कि हेडेक्स हो रहे हैं, मेरे को बार बार गैस्ट्राइटिस हो रहा है, हार्टबर्न हो रहा है, चेस्ट पेन्स हो रहे हैं, सोमैटिक कंप्लेंट्स मैक्सिमम टाइम रहते हैं। एंड व्हेन दे गो एंड टॉक अबाउट दिस सोमैटिक कंप्लेंट्स, हम लोग सिर्फ नॉर्मली जो जनरल फिजिशियंस जो रहते हैं, जो पेरिफेरी में काम करते हैं, उनको थोड़े बहुत लिख के पूछ लेते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, रादर देन आस्किंग, प्रोडिंग कि आपको सच में कुछ स्ट्रेस है, कि आपको सच में कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। और एट टाइम्स वुमेन हाइड दीज थिंग्स कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इवन इफ दे सफरिंग सम काइंड ऑफ अब्यूज, वो इतना ईगरली ओपन अप नहीं होते हैं। तो दोज थिंग्स बिकम अ बिग चैलेंज फॉर। तो एक चीज हम लोग की तरफ से हम वी कैन ट्रेन पीपल कि आइडेंटिफाई करवाइए कि व्हेन यू आर सीइंग अ वुमन कमिंग अप कि उसको बहुत सारे इश्यूज है, सोमैटिक इश्यूज है, कि ये आप यस सो इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार लंबे टाइम तक अगर कोई फिजिकल इलनेस चलती रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइकियाट्रिक इलनेस बट इवन फिजिकल इलनेस, मे बी हाइपरटेंशन, मे बी डायबिटीज, थायराइड, और मे बी आर्थराइटिस काइंड ऑफ इलनेस, और मे बी गैस्ट्राइटिस काइंड, तो कई बार उसके पीछे ये साइकोलॉजिकल रीजन है, वो बहुत जानना जरूरी है। जो फैमिलीज हेल्प करना चाहते हैं, if they are genuinely interested in helping, because there are very few people who are out there who want to know, तो आप उनको बिठा के ask their time, उनको isolate, अलग बिठा के आइसोलेशन में try to develop a communication, क्योंकि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ही डेवलप नहीं हुआ होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो रहना चाहिए, विच इज अ ट्रांसपेरेंट क्लियर कम्युनिकेशन, वो होता ही नहीं है। तो सबसे पहले वो ब्लेम गेम बंद करनी जरूरी है। ये स्टॉप दैट ब्लेम गेम एंड स्टॉप फाइंडिंग आउट रीजन बाय योरसेल्फ। आपकी अपनी आइडियोलॉजी साइड पे रख के ट्राई टू थिंक फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, ट्राई टू थिंक फ्रॉम women's perspective to know that what she is suffering। एक ये चीज है। और दूसरा है कि इवन इफ देखो जनरल प्रैक्टिशनर के पास काफी लोग जाते हैं, जैसे आपने बताया कि दे गो टू फैमिली फिजिशियन, और फैमिली फिजिशियन भी उनको इंसिस्ट करते हैं कि नो दिस इज समथिंग विच इज अ साइकियाट्रिक इलनेस। सो अगर आपके फैमिली डॉक्टर भी आपको बोल ही रहे हैं, देन इमीडिएटली अप्रोच अ साइकियाट्रिस्ट। डोंट waste a single day, because whenever psychiatric illness is get chronic or they get prolonged, उसका ट्रीटमेंट उतना ही लंबा चलता रहता है। और दूसरी एक स्वभाव की बात है कि एक पर्सनालिटी इश्यूज जो रहते हैं, तो वो हर एक साइकियाट्रिक इलनेस इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल वो उसके साथ रहते ही है। तो काइंडली देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि स्वभाव को आप साइड में रखो अभी फॉर अ टाइम बीइंग, एंड जस्ट यू ट्राई टू लुक वेदर there is a psychiatric component or not। और इसमें 2-3 बहुत वार्निंग साइंस रहती है, रेड फ्लैग साइंस रहती है कि एक, if they have stopped working or their efficiency in their routine course is declining day by day, कि पहले जो अच्छे से रसोई करते थे, अच्छे से देखभाल करते थे, वो डिक्लाइनिंग होता जा रहा है। दूसरा, if they are staying tired and fatigue, कि थकावट बिना वजह रहती है।
और तीसरी चीज है कि उनके बिहेवियर में इरिटेबिलिटी या मूड में प्रॉब्लम या रूटीन में कुछ प्रॉब्लम आपको दिखता है, तो इमीडिएटली गो फॉर दिस रेड फ्लैग साइन टू बी some psychiatric illness or some psychological component जो आप being a family member मिस कर रहे हैं. So approach an expert for that. तो एक और क्वेश्चन इस पे ये भी आता है that regarding self help, कि if a person, a female is having some kind of psychiatric issues, then how they can help themselves. Yet I totally agree कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है उन पे, सारे रोल प्लेइंग भी काफी ज्यादा है, बट स्टिल कैसे सेल्फ हेल्प ले सके, कैसे अपने आप को तैयार कर सके कि एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कि औरतों को, जैसे कि आपने बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल औरतों को ये समझना जरूरी है कि बर्नआउट कहाँ होता है. ठीक है, आप हर जगह पे हर समय पे नहीं रह पाओगे. ठीक है, तो वो बर्नआउट समझना उनके लिए बहुत जरूरी है. जब आपको, आपने जैसे वार्निंग साइंस के बारे में बात किया कि उनको मतलब कि थकान महसूस होती हो, काम में इंटरेस्ट नहीं लगता हो, है ना, रात को नींद नहीं आ रहा हो, अब जैसे जो चीजों में अच्छा लगता हो वो चीज ही मजा ही नहीं आ रहा हो, देन दे नीड अंडरस्टैंड कि नहीं, अभी मेरा ये टाइम है कि आई एम मेरा अभी आई नीड टू टेक हेल्प. And second of the thing, it is very important. I always tell many women patients who come to me with anxiety and stress, मैं बोलती हूँ आपके खुद के लिए थोड़ा बहुत टाइम जरूरी बाहर निकालिए. जो चीजें आपको पसंद है, जो इंटरेस्ट है आपके, कुछ हॉबीज है, लोगों यू नो इन द लॉन्ग टर्म उनको ये हॉबीज, उनका जो सोशल मिंगलिंग, ये सब चीजें पूरा बंद हो जाता है. जो इंटरेस्ट रहता है, जो पहले जो इंडिपेंडेंटली जो चीजें कर पाती बिकॉज ऑफ बीइंग बाउंड टू द फैमिली, वो चीजें थोड़ी कम हो जाती है. तो वो चीजों को उन लोगों को थोड़ा मैं बोलती हूँ कि स्टार्ट दोस थिंग्स जो आपको मजा आता हो, जो आपको जो मी टाइम होता है ना, तो पूरे दिन भर के बाद ये मेरा टाइम है, दिस इज माई पर्सनल टाइम एंड आई वॉन्ट दैट टाइम टू बी विथ मी. मतलब वो पीरियड में मैं सिर्फ अपने लिए देखूं, चाहे उस टाइम में आप रिलैक्सेशन कर सकते हो या फिर कोई सोशल ग्रुप में जाके आप अपना कुछ भी एक्टिविटी, जैसे कि आपको अच्छा लग रहा हो, आप गाना गाओ, आप कोई आर्ट करना चाहते हो, या फिर आजकल तो कोविड की वजह से बहुत सारी ग्रुप्स भी टूट गई है, तो यू कैन ज्वाइन वर्चुअली, जैसे हम और आप कर रहे हैं. आप अहमदाबाद में हो, मैं कटक में हूँ, एंड वी आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अपार्ट, बट वी कैन डू दीज थिंग्स. So these are the things that I always encourage them to do. बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, जब वो रिमोट एरिया, रूरल एरिया से आते हैं, जो बोलते हैं कि घर से बाहर ही निकलने नहीं देते हम लोग को, तो हम कैसे करेंगे. तो मैं सबसे पहले तो उनको बोलती हूँ कि आप घर से बाहर भी अगर नहीं निकल रहे हो, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करिए. ठीक है, कि जो भी किसी को कोई समझे कि कोई नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं, कभी कभी ओवरबर्डन हो जाता है फैमिली को. हम समझने में कभी कभार बहुत सारे फैमिली इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं कि फीमेल का प्रॉब्लम, दे टेल दैट कि ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका काम है, ये तो करना ही है उसको. ठीक है, और अगर वो नहीं कर पा रही है, शी इज इनकॉम्पिटेंट एंड शी इज अनएबल टू हैंडल द फैमिली, तो वो सब चीजें होता है. तो आई टेक द फैमिली फॉर सम टाइम एंड एक्सप्लेन देम. होता है कि एट टाइम्स फैमिली अगर ब्रॉड माइंडेड हो तो वो समझती है, अगर नहीं होती है देन वी कैन रेगुलरली वो सब चीजें हम कोशिश कर पाते हैं. देखो, इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी रहा है. आई थिंक फर्स्ट वी शुड जस्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड अगेन ऑन दिस वीडियो. रीमा, तेजस, everyone, and I think there are few other names, Mr. Saurendra, Rashmita, and प्रभाती जी, एंड एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सो इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि जब अपब्रिंगिंग रहती है ना, तो ना कैसे बोला जाए और ना कब बोलना चाहिए, दैट हाउ टू लर्न टू से नो, वो नहीं सिखाया जाता है. तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है विद फैमिली मेंबर्स, और फिर दूसरे भी जो पेशेंट ग्रुप भी है, कि जो लोग इफेक्टिवली और असर्टिवली अगर ना बोलना सीख जाते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू समहाउ मैनेज फॉर मी. तो ये अगर क्लियर असर्टिव मैसेज राइट फ्रॉम बिगिनिंग अगर कोई करना सीख जाए, तो देन इट विल बी अ ग्रेट सेल्फ हेल्प to the female who is under a psychological issues or maybe a psychiatric illness. और learn to say no में दो ही चीज
है जो सोचनी बहुत जरूरी है। एक चीज है कि आपके लिए व्हाट इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी, सबसे महत्वपूर्ण नंबर वन प्रायोरिटी आपके लिए क्या है? वो आपकी मेंटल हेल्थ है। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वन शुड थिंक। एंड सेकंड, अगर आप सबमिसिव फॉर्म में आउट ऑफ द वे जाके काम करे ही जा रहे हो, मल्टीपल थिंग्स पे जहां आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, फिर भी आप करे ही जा रहे हो, तो फ्यूचर भी आपको ऐसे ही जीना है कि whether you need something which should change for you। तो ये दो क्वेश्चंस अगर दिमाग में अगर रहेंगे तो people will be able to assertively communicate their own needs, their emotions and their other aspects of life। तो इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी हद तक कट डाउन हो सकते हैं। एक और भी बात है कि you told about the psychosocial aspects which females are suffering, और जो आपने बताया कि सारे जो मैं समझ रहा हूँ कि वो काफी दुखद और करुण बातें भी हैं जो है, पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो गॉड गिफ्टेड है इन फीमेल्स, दैट females can do multitasking better than male people, and they can handle or they can problem solve it better than other aspect। but so उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, what are the strengths of mind of female, that how why female, or what are the strength of women mental health? Yes. बेसिकली हमें जानना चाहिए कि when they used to say कि women का brain अलग है from men, but some people accept that theory, some people reject that theory, but overall देखा जाए तो women का resilience I think there is some issue, but yeah, please, you were telling resilience, yeah तो yeah तो इसकी वजह मैंने that is one of the reason कि आप मुझे उसके बारे में थोड़ा फिर resilience के बारे में, और प्लीज आई एम गिविंग यू अ पॉज, आप resilience के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। ओके कि जो फाइट बैक जो कैपेसिटी होती है वुमेन की, जो दे विल कम बैक टू स्ट्रेंथ, वो सब चीजें बहुत ज्यादा होता है। फीमेल इतनी हैंडलिंग स्ट्रेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेन। वो बहुत सारी चीजें होती है ना, मैन जो होते हैं कि स्ट्रेस आया तो होते हैं, और मतलब कि वो चीजें या मतलब कि आइदर नशे में जाते हैं या फिर कुछ भी, वो सब चीजें फीमेल में बहुत कम रहती हैं। एंड दे आर मच मोर, उनका थोड़ा रहता है कि हाउ विल आई ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत अच्छी रहती है कभी कभी फीमेल्स में। बट दैट डजंट मीन कि हम सबको मतलब कि वी कैन नॉट जनरलाइज दिस फैक्ट। ये नहीं है कि हर एक फीमेल में वो कैपेसिटी हो, ठीक है। बट व्हाट आई वुड लाइक टू एम्फसिस इज नाउ इज कि जो चीजें हमें है कि बाय दैट समथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। जब हम घर से चालू करते हैं, वी कैन चेंज द एटीट्यूड इन द फ्रॉम द होम, because I have worked in certain states and country where मतलब कि apart from patriarchy को तो भूल जाइए, the female have been the main leaders in the family, and they have been the in big administrative post. And when we read their stories, it's always from home. Either there was a strong mother who supported them. This is what I always request parents कि no doubt wherever कि आप अपने male child हो कि female child, treat them equally. They learn them, make them to share responsibilities at home equally. और इसका और even मैंने whatever a male child can go through, a female child can go through the same problems. So it's always important that you pay emphasis, मतलब कि both of चीजों में emphasis दीजिए। और and very important कि female में is the education। अगर एक फीमेल एडुकेटेड रहेगी तो वो अपने राइट्स समझ पाएगी, अपने हेल्प ले पाएगी। व्हेन वी आर, हम जब देखते हैं बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, मेजॉरिटी ऑफ देम उनको उनके राइट्स के बारे में ही पता नहीं होता है। Unfortunately, we have one center in our SCP Medical College, inside this SCP Medical, inside our campus itself. It's called Sakhi Center.
So here, whenever we hear about the instances of domestic violence, या फिर any kind of abuse, any kind of emotional हो, कि physical हो, कि psychological abuse हो, we Yeah. send these women to the Sakhi center. We counsel them. We have a unit of psychiatry, Yeah. the means the Sakhi center and all. Sakhi center जो है, it gives you the legal help also. Yeah. क्योंकि बहुत सारे फीमेल होते हैं वो इंटीमेट मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं दे आर स्केयर्ड टू टेक द हेल्प ऑफ लीगल सर्विसेज. उनको लगता है कि नहीं इसके अंदर पढ़ोगे तो चक्रव्यूह जैसे फंसोगे. तो वो चीजों को हम थोड़ा उनको एनकरेज करते हैं. वी गिव देम जो जो मतलब कि होता है सपोर्ट काइंड ऑफ, ट्राई टू गिव देम दोस थिंग्स एज मच एज वी कैन. हमें पता नहीं है कि घर जाने के बाद क्या होगा, बट वी गिव दीज काइंड ऑफ सपोर्ट चैलेंजेस जो रहती हैं. वी ट्राई टू हेल्प देम इन सम और अदर. अदर थिंग इज दैट कि अभी गवर्नमेंट का भी अभी बहुत सारा पॉलिसी मेकिंग में बहुत सारे चेंजेस है. एज यू कैन सी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो बंद हुआ. फीमेल चाइल्ड को एजुकेशन में कितने फायदे हुए. इवन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन राजकोट, मेरा ट्यूशन फीस नहीं था राजकोट में. तो माय कलीग हु वर मेल कलीग्स, दे वर लिटिल बिट मतलब कि उनको क्या बोलूं दे वर लाइक सब उन लोग उधर जेलसी होता था कि अरे इसको तो ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ता है. सो दैट वाज काइंड ऑफ एनकरेजमेंट. सपोज बहुत सारे और मतलब कि क्या होता है फैमिली मेंबर्स दे ट्राई टू सेव मनी फॉर द मैरिज ऑफ द चाइल्ड रादर देन स्पेंडिंग इट फॉर द एजुकेशन ऑफ द फीमेल चाइल्ड. तो वो सब चीजों वो चीजें धीरे धीरे सब चेंज होना जरूरी है. एंड इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. हम सबको उसके साथ चलना है, कंधे से कंधे मिला के चलना है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेंटल हेल्थ वीक, मेंटल हेल्थ मंथ, ये सब इश्यूज भी धीरे धीरे उठानी है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट unequal world, world so within our society, it lies within our society. So we can how can we balance that is a step by step process. I think many मैंने government ने भी बहुत steps लिए हैं. And we are and simultaneously it is our duty to make this female understand their rights. उनके क्या राइट्स हैं, उनको कहाँ से हेल्प लेना चाहिए. एंड फैमिली को प्रॉपर काउंसलिंग है ना. जो चीजें बोलते हैं ना कि मैरिज हो जाए तो शायद से ये चीज ठीक हो जाएगा, वो चीजों को थोड़ा सा टैबू, जो स्टिग्मा, जो ऑस्ट्रिचाइज जो किया जाता है फीमेल को, उन सब चीजों को धीरे धीरे करके हमको मैनेज करना सीखना चाहिए. Yes, very nicely described about how a female can seek help and the legal aspects and other centers which are there. And yes, so Dr. Bipin has also told that there is in Gujarat, there is one center, Sakhi One Stop, which is working, and even even Saurendra Kumar Mahapatra is telling that we are always taught about the physical health, but we are never taught about, or hardly we are taught about but I think with people who are commenting like you, and we are a part of this community, and if we are able to make ourselves aware, we are definitely able to make the women in our family or our context aware about their health related guidelines and their other resources. I think Dr. Pallavi, we are going beyond time. So last one thing, that just a take home message from your side about women mental health, please. Actually, my only message to the viewers would be ki please try to identify the warning signs for any kind of mental illness if you can find. And whenever you find it, don't hesitate to approach to take help in any sort. It can be a psychological help, it can be a social help, whatever it sort be. Try to approach wherever you want. एंड और जैसे भाई आपने बोला कि कभी कभार ना करना भी जरूरी है, तो दैट assertiveness should be there. Yes, so just last few lines that we all know, हम लोग काफी
टाइम से ये भी सुन रहे हैं कि नारी के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, अबला नारी. So then if we want to change that thing, we are the first person who will be able to change that. अगर हम दूसरों की राह देखेंगे कि NGOs आए, गवर्नमेंट कुछ करे और वगैरह वगैरह कुछ हो, so then we are the first person who should take the initiative of women mental health and how to empower and enhance the positive mental well-being in females. And if we take the initiative today, then our next generation will see that they will also learn those skills, and then it will be a new kind of ideology which will be generated and ongoing for years together. So this is a kind of thing which we wanted to discuss, and I thank you, Dr. Pallavi, for joining on this Facebook Live event that is Mind Talks. और सारे जो व्यूअर्स हैं वो आखिरी तक भी जुड़े हुए हैं, काफी लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं. थैंक यू सो मच फॉर दोस कमेंट्स एंड एनकरेजिंग अस in spite of all the technical issues which we had today. A big apology from my side. And no, I can't tell you, it's the worst thing कि अभी रेंज भी खत्म हुए और नेटवर्क इशू हुआ, लाइट चला गया. No, it's fine. So just thank you so much, Dr. Pallavi, for being there. Thank you, and thank you all all the for giving viewers. me this opportunity. Thank you. Have a nice time, all the viewers. Thank you. Yeah, bye. Bye.